آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میزورم آئیزول میں 9,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا ہے، جن میں بھیروی سارنگ نئی ریل لائن بھی شامل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ شمال مشرقی حصہ ملک کی ترقی کا انجن بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سارنگ دلی راجدھانی ایکسپریس، سارنگ گوہاٹی ایکسپریس اور سارنگ کولکاتہ ایکسپریس 3 ایکسپریس گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ کرناٹک کے ہاسن ضلع میں گنپتی وسرجن جلوس سے ایک ٹینکر ٹکرانے کے نتیجے میں 9 افراد کی موت ہو گئی۔ روس کے کمچٹکا خطے میں 7.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، جس کے بعد وہاں سونامی وارننگ بھی جاری کی گئی۔ بھارت کی مردوں کی ڈبلز جوڑی ساتوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی بیڈمنٹن ہانگ کانگ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، اور جیسمن لیمبوریا اور نوپور شیورن برطانیہ میں لیورپول میں خواتین کی مکے بازی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئیزول میزورم میں آج ورچوئل طریقے سے 9,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ان کا سنگ بنیاد رکھا۔ مختلف شعبوں سے ان پروجیکٹوں کا تعلق ہے، جن میں ریلوے، کھیل کود، توانائی اور روڈ ویز بھی شامل ہیں۔ جناب مودی نے بھیروی سارنگ ریل لائن کا بھی افتتاح کیا، جس کی بدولت میزورم کی راجدھانی پہلی بار بھارت کے ریلوے کے نقشے پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے والی معیشت ہے اور ملک کا شمال مشرقی حصہ ملک کی ترقی کا انجن بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ دیہی سڑکوں اور شاہراہوں، موبائل اور انٹرنیٹ رابطوں، بجلی، نلوں کے ذریعے پانی کی فراہمی اور LPG کنیکشن کو توسیع دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سرکار لگاتار رہن سہن اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جناب مودی نے بھارت کی مشرقی ملکوں پر خصوصی توجہ دینے کی پالیسی اور شمال مشرقی اقتصادی کوریڈور میں میزورم کے ایک اہم رول کو بھی اجاگر کیا۔ Mizoram is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line, and today we proudly dedicate it to the people of the nation, overcoming many challenges. انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ GST کے سلسلے میں حال ہی میں جو نئی اصلاحات کی گئی ہیں، ان کے نتیجے میں متعدد اشیاء پر ٹیکسوں میں کمی آ گئی ہے اور لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھیروی سارنگ نئی ریلوے لائن کے بچھانے میں 55 بڑے پلوں اور 45 سرنگوں کی وجہ سے کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 نئی ایکسپریس گاڑیوں سارنگ دلی راجدھانی ایکسپریس، سارنگ گوہاٹی ایکسپریس اور سارنگ کولکاتہ ایکسپریس کی شروعات کی۔ جناب مودی نے لونگ تلائی سیاہ روڈ پر چھمٹوئی ریور برج کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ پل کے بن جانے سے ہر موسم میں آمد و رفت کی سہولت حاصل رہے گی اور سفر کے اوقات میں 2 گھنٹے کی کمی آئے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے منی پور پہنچے اور وہاں انہوں نے
चोराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। अवाम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत सरकार मणिपुर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मणिपुर के अवाम की बेदारी और जुर्रत की सताइश की। उन्होंने इस बात के लिए भी लोगों की तारीफ की कि शदीद बारिश के बावजूद वो कसीर तादाद में वहां पहुंचे हैं। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से दिवाली तक अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात का ऐलान किया था। उनके इस विजन ने 3 सितंबर को उस वक्त हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली जब जीएसटी काउंसिल ने टैक्स शरहों को माकूल बनाने, कई शोबों में टैक्स शरहों में कटौती करने और शहरियों के रहन सहन में सहूलत पैदा करने को अपनी मंजूरी दे दी। आज हम टैक्स फ्री अशिया पर एक नजर डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात के तहत हुकूमत ने बहुत सी ज़रूरी अशिया को जीएसटी से मुस्तस्ना करके आम आदमी के बोझ को कम करने की सिमत अहम इक़दाम किए हैं। नए निज़ाम के तहत सब्जियों, फलों, मेवा और मशरूबात जैसी सारिफिन के इस्तेमाल की अशिया पर 12% के टैक्स ज़ुमरे से कम करके 5% के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। नमकीन, भुजिया और मिक्सचर जैसे नाश्ते की अशिया को भी 12% से कम करके 5% के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। जीएसटी की शरहों में कमी से रिटेल कीमतों में भी कमी आई है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरी अशिया की खपत, मांग और तैयारी में भी इजाफा होगा, जिसमें डब्बाबंद अशिया भी शामिल हैं। आकाशवाणी दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुए हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ड्राइवर की लापरवाही से टैंकर ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंद डाला। यह हादसा मुसाले होसल्ली गांव के करीब पेश आया। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने इस हादसे में गहरे रंजोगम का इजहार किया है और महलूकीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और महलूकीन के लिए 2 लाख रुपए जबकि दीगर जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया। रूस के कमचटका खित्ते के मशरकी साहिली इलाके में जलजला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमा पर 7.4 बताई जाती है, जिसकी वजह से सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। अमेरिका के अर्जियाती जायजे से मुतालिक मरकज के मुताबिक कमचटका खित्ते के इंतजामी मरकज के 111 किलोमीटर मशरिक में वाक़े एक जगह में 39.5 किलोमीटर की गहराई में इस जलजले का मरकज था। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इस आला दर्जे की भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के चैन चैंग क्वान और लिन बिंग वी की जोड़ी को 21-17, 21-15 से सेमीफाइनल में आज सुबह शिकस्त दी। और जैस्मीन लेम्बोरिया और नुपुर श्योरन अपने अपने जुमरे में बर्तानिया में लिवरपूल में खवातीन की मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मिजोरम आइजॉल 9,000 किलोमीटर रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिनमें भैरवी सारंग नई रेलवे लाइन भी शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि शिमाल मशरकी हिस्सा मुल्क की तरक्की का इंजन बनता जा रहा है। वजीर आजम ने सारंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सारंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सारंग कोलकाता एक्सप्रेस 3 नई एक्सप्रेस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्नाटक के हासन जिले में गणपति विसर्जन जुलूस से एक टैंकर टकराने के नतीजे में 9 अफराद की मौत हो गई। रूस के कमचटका खित्ते में 7.4 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया, जिसके बाद वहां सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।